guys, welcome back. Today in this video we'll learn about two important topics. First one is the drawback of Rutherford model of atom. First we learn about the drawback of the Rutherford model of atom, and then we'll learn about the Bohr's model of atom. In Bohr's model of atom we'll learn about the postulates, merits and demerits of Bohr's model of atom. Let's get started. Now we'll start with our first topic, that is drawback of Rutherford model. Now first of all, a quick back to the Rutherford model. Rutherford model of atom क्या था? According to Rutherford model of atom, an atom consists of two parts. One is nucleus and another one is extra nuclear part. So according to Rutherford, an atom consists of a small, heavy, positively charged body called nucleus, around which electrons are revolved. Means there is a nucleus at the center of the atom, and around the nucleus electrons are revolved. Now in Rutherford model of atom, the stability of the atom is determined by the fact that the force of attraction, जो force of attraction कौन लगा रहा है? न्यूक्लियस किसकी तरफ? इलेक्ट्रॉन्स की तरफ. That is balanced by the centrifugal force, because electrons are revolving around the nucleus, so there exists a centrifugal force, और centrifugal force किसको balance कर दे रहा है? Force of attraction को. That's why the atom becomes stable. So in this way, the Rutherford model is compared with the solar system. Rutherford model को किससे compare किया था? Rutherford system से. But अगर हम Rutherford model और solar system की बात करें, there is a basic difference between the Rutherford model and the solar system. What is that difference? If we talk about the first difference, in solar system we are dealing with sun and planets. These sun and planets are macroscopic objects. Whereas in atom we are dealing with nucleus and electrons. And if we talk about nucleus and electrons, these are microscopic objects. Now in case of solar system, by applying Newton's law, ठीक है, हम जब न्यूटन्स लॉ की बात करते हैं, दैट एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. जब हम न्यूटन्स लॉ की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू दैट न्यूटन्स लॉ, द फोर्स ऑफ attraction exerted by the sun on the planet is balanced by the centrifugal force. ठीक है, but this Newton law of motion is applicable only and only for macroscopic objects, not for microscopic object. जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन दिया था न्यूटन ने, वो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए दिया था, और वो हम पढ़ते हैं क्लासिकल फिजिक्स में. बट the physics which deals with the microscopic particle, that physics is known as quantum physics, and quantum physics में आपका न्यूटोनियन लॉ ऑफ मोशन अप्लाई नहीं होगा. इट मीन्स जो आपका माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स है उनके केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और सेंट्रिपिकल फोर्स में कोई भी रिलेशन नहीं हो सकता. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द सेकेंड डिफरेंस, in solar system the sun and planet, they are macroscopic object as well as uncharged body. ठीक है, they are uncharged body. But if we talk about nucleus and electrons, they are microscopic object as well as they are charged body. Clear? As well as they are charged body. So according to Maxwell electromagnetic wave theory, the Maxwell electromagnetic wave theory थी, according to that theory, if a charged particle like electron is revolved around a charged body or around a force,
ठीक है, जस्ट लाइक अ न्यूक्लियस, जैसे न्यूक्लियस एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहा है किस पे, इलेक्ट्रॉन पे। सो जब एक चार्ज बॉडी किसी फोर्स के अंडर रिवॉल्व करती है, इट लूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो वो क्या करती है, एनर्जी को रिलीज करती है किस फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में। Why? Because when a charged particle revolve, it accelerate. वो क्या होता है, accelerate. Why it accelerate? Due to the change in the direction, even though the speed remains same. Clear? It means जब कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी भी फोर्स के अंडर रोटेट करता है तो वो क्या होता है, एक्सेलरेट होता है। वो क्यों एक्सेलरेट होता है, क्योंकि हर पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, दो इट इज मूविंग विद अ रेगुलर स्पीड। सो एक्सेलरेट होने की वजह से वो बार बार क्या करता है, एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या करता है, रिलीज करता है। सो इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो द चार्ज पार्टिकल एंड इट इज रिवॉल्विंग अराउंड अ force that exerted by the nucleus. So electron also emit energy in the form of radiation, and if electron emit energy in the form of the radiation, then the orbit of the electron जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, that size decreases, goes on. Clear? It means like if it is nucleus and here is the orbit of the electron. This is the orbit of the electron in which electron is revolving. So when it move around the nucleus, this is the charged body and this is the force exerted by the nucleus. So जब ये इसके अराउंड रिवॉल्व करेगा, so ये क्या emit करेगा, electromagnetic radiation, and when it emit energy, its rotation becomes smaller and smaller, and finally it get collapsed into the न्यूक्लियस। फाइनली ये कहाँ गिर जाएगा, ये गिर जाएगा आपका किसमें, न्यूक्लियस में। क्लियर? एंड व्हेन इट कोलैप्स्ड और व्हेन इट फॉल इन द न्यूक्लियस, द एटम बिकम्स कोलैप्स्ड एंड द एटम डिस्ट्रॉय, बट एटम डिस्ट्रॉय नहीं होता। सो this is the major drawback of Rutherford model, that Rutherford model is not able to define the stability of an atom. Rutherford क्या नहीं define कर पाया था, stability of an atom, because according to Rutherford ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन आपके रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द न्यूक्लियस इज बैलेंस्ड बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन स्टडी में ये पाया गया कि ये जो आपका पर्टिकुलर एक्ट है, ये जो पर्टिकुलर लॉ है, दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, नॉट फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। इट मीन्स यहाँ ये लॉ एप्लीकेबल नहीं हो सकता। सेकेंड थिंग, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल एंड इट इज रिवॉल्विंग अराउंड अ फोर्स एक्सर्टेड बाय द न्यूक्लियस, सो whenever a charged particle rotate around a force, according to Maxwell electromagnetic wave theory, that charged particle emit energy in the form of electromagnetic radiation. So electron भी क्या करेगा, electromagnetic radiation को emit करेगा, and when electron emits the electromagnetic radiation, its orbital spiral, its orbital radius, जो इसके orbit का radius होगा, its orbit radius becomes smaller and smaller, and finally it falls into the nucleus and the atoms collapse. However, this does not happen. It means there is certain other thing which is responsible for the stability of the atom. इसका मतलब एटम में कुछ न कुछ और है जिस वजह से एटम में आपका स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। सो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, दैट इज बोर्स मॉडल ऑफ एटम। सो टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल and to explain the line spectrum of the hydrogen, we have studied the line spectrum of the hydrogen in our previous video. If you want to study it again, I'll provide you the link. So to overcome the drawback of the Rutherford model and to explain the line spectrum of the hydrogen, Niels Bohr in 1913 gave a theory which is known as Bohr's model of theory. So बोर्स मॉडल ऑफ थ्योरी ने एक तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की जो ड्रॉबैक था उसे वहां पे
क्या किया, ओवरकम किया। और साथ ही साथ जो हमने लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन पढ़ा था, वो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन क्यों जनरेट हुआ, किस लिए जनरेट हुआ, ये सब एक्सप्लेनेशन जिस थ्योरी में हमें मिली, दैट इज Bohr's theory of atom. This theory was given by Niels Bohr and in 1913. So we'll study the postulates of Bohr theory first. Bohr's model of atom. This theory was given by Niels Bohr and in 1913. ये इस थ्योरी ने किया क्या, ओवरकम रदरफोर्ड ड्रॉबैक and second thing what this theory did, explanation of line spectra of hydrogen. Clear? Now we'll study the postulates of Niels Bohr's theory. The main postulates of Niels Bohr's theory. Now the first postulate of Niels Bohr theory is the same as that of the Rutherford model but with a little modification. जो फर्स्ट पॉस्टुलेट था बोर थ्योरी का, वो सेम रदरफोर्ड मॉडल के जैसा ही था, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपका क्या था, मॉडिफिकेशन था. सो व्हाट इज फर्स्ट पॉस्टुलेट ऑफ बोर मॉडल ऑफ एटम? एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन द सेंटर and electrons revolve around the nucleus in a circular orbits. Clear? So फर्स्ट पॉस्टुलेट में क्या कहा आपका नील बोर ने कि आपका सेंटर में क्या प्रेजेंट होगा, एटम के एक हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा जिसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स आपके सर्कुलर ऑर्बिट्स में रोटेट करेंगे. क्लियर? बट इन सेकेंड पॉस्टुलेट में नील बोर ने क्या कहा, दैट इन एटम नंबर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स आर पॉसिबल. एक एटम में न्यूक्लियस के अराउंड नंबर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स प्रेजेंट है, बट इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ओनली इन दोज सर्कुलर ऑर्बिट्स विच हैव डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी. इट मीन्स अगर आपका सपोज दिस इज द न्यूक्लियस एंड अराउंड द न्यूक्लियस अकॉर्डिंग टू नील्स बोर अ नंबर ऑफ ऑर्बिट्स आर प्रेजेंट. न्यूक्लियस के अराउंड बहुत सारे ऑर्बिट्स प्रेजेंट है, बट it is not necessary that every orbit contains electron. ये जरूरी नहीं है कि हर ऑर्बिट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, because electrons are present only in those orbits which have a definite amount of energy, and these orbits are known as energy levels or stationary state. तो फर्स्ट जो उन्होंने पॉस्टुलेट बताया, दैट इज सेम एज दैट ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल. जैसे रदरफोर्ड ने कहा था सेंटर पे आपका न्यूक्लियस होगा, उसके अराउंड आपके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे. बोर ने भी कहा दैट इन द सेंटर ऑफ द एटम वी हैव अ स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ सर्कुलर ऑर्बिट्स. बट सेकेंड में बोर ने क्या कहा, दैट इन out of many circular orbits, electron are present only in those circular orbits which have a definite amount of energy, and those orbits are known as energy levels or stationary state. Now here the term stationary doesn't mean that the electron in these orbits are stationary. Stationary का मतलब stationary, what the meaning of stationary means रुका हुआ. So stationary state ये कहने का मतलब नहीं है that in these orbits electrons are stationary, electron रुके हुए हैं. No, stationary state means in these states the energy of the electron remain same because they have a fixed amount of energy. Now in second postulate we have to learn certain formulas. In second postulate we have to learn certain formula. First formula we have to learn, that is of energy.
बिकॉज हमने क्या पढ़ा दैट electrons are present only in those circular orbits which have a definite amount of energy, and we'll calculate the energy of those orbitals by using a formula that is known as Bohr formula. This is known as Bohr formula, and this formula is derived by the Bohr for hydrogen atom. ये जो formula derive हुआ है ये किसके लिए derive हुआ है? hydrogen atom के लिए derive हुआ है. So what is the formula? Energy En is equals to minus 2 pi square m e की power 4 upon n square into h square. Clear? Here m is the mass of the electron, e is the charge of the electron, n is the number of the orbit in which the electron is present, and h is the Planck's constant. Now why here Planck's constant is there? Because Bohr derived his model of atom by using the Planck's quantum theory, which we have already studied in our previous video. क्लियर? जो बोर था उसने अपने मॉडल को डिराइव करने के लिए किसके पोस्टुलेट्स की हेल्प ली थी? प्लैंक्स कांस्टेंट थ्योरी की हेल्प ली थी. दैट्स व्हाई इट इज h here. So the formula of energy is En equals to minus 2 pi square m e की पावर 4 n square into h square. On putting the value of pi, m, e and h, we get 3 values of e. हमें 3 values of e मिलेंगी. The first value is minus 21.8 into 10 to the power minus 19 upon n square joule per atom. So, अगर पर एटम हमने क्या फाइंड आउट करना है? एनर्जी जूल में फाइंड आउट करनी है. सो इस वैल्यू को ना लिख के हम सिंपली इस वैल्यू को लिख सकते हैं. सो बाय सिंपली पुटिंग द वैल्यू ऑफ द ऑर्बिट हमें हमारी एनर्जी मिल जाएगी. इफ वी हैव टू कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल एंड दैट ऑफ अ पर्टिकुलर एटम. बट इफ वी हैव टू कैलकुलेट द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आवर इक्वेशन बिकम्स minus 13.6 upon n square joule per atom. And if we have to calculate in this in both the term, it is per atom and per atom. Now if we have to calculate in per mole and in kilojoule, our energy becomes minus 1312 upon n square kilojoule per mole. So if we have to calculate simple energy, so हम ये formula put कर सकते हैं. But if we have to calculate the energy in joule per atom, we can use this formula. ठीक है? This formula is derived from this only. The main formula is this. जो main formula है हमारा, this is known as Bohr formula. Bohr's formula. So main formula is this, and this is for hydrogen atom. ये जो हमारा है formula, ये किसके लिए है? Hydrogen atom के लिए है. And these three are the formula by putting the value of these in joule per atom. Here it is electron volt per atom, and here it is kilojoule per mole. Now for hydrogen like species, clear? जैसे हमने Rydberg formula में पढ़ा था, one formula is for hydrogen and another formula is for hydrogen like species. It means which contain one electron. So for hydrogen like species, our formula becomes En equals to minus 2 pi square m e की power 4 divided by n square into h square into z square. And what is the z here? This z is the same which we have read in Rydberg formula, and yes, it is atomic number. So if I am talking about Li2 positive, here the Z becomes 3. If I am talking about He positive, here the Z becomes 2. So for hydrogen like species, and I am here talking about species, not element, because कोई भी element hydrogen के जैसा नहीं होगा, because कोई भी element के पास one electron नहीं है, only hydrogen contain only one electron. So hydrogen like species means He positive, Li2 positive, these are hydrogen like species, not hydrogen like element. So for hydrogen like species, the formula is this. Now if you have observed, En equals to minus means in every equation there is a minus term. ठीक है? Now why it minus term?
because whenever an electron is far away from the nuclear force of attraction, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बहुत दूर होता है, means infinity, whenever the electron is present at infinite distance from the nucleus, there is no nuclear force of attraction present on the nucleus, यानी at that time the electron becomes free. उस समय पे जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारा क्या होता है, फ्री होता है, बिकॉज उस पे कोई भी न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है. At that time the electron is free to move. It means it has no foundation, so its energy is zero, because at that time it is stable. That's why its energy becomes zero. So whenever an electron is present at a distance infinite from the nucleus, there is no nuclear force of attraction in the electron, as a result of which electron becomes free and energy of the electron is supposed to be zero. उसको हम क्या consider कर लेते हैं कि उस पे कोई भी energy नहीं है. When it comes in the field of the nuclear force of attraction, लेकिन जैसे ही वो किसकी तरफ आता है, towards the nucleus, a nuclear force of attraction applied on the electron. एक न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे लगता है, इलेक्ट्रॉन पे लगता है. ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इट एमिट एनर्जी. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने की वजह से वो एनर्जी को क्या करता है, एमिट करता है, एंड बिकॉज इट्स एनर्जी इज ऑलरेडी जीरो, और अगर वो एनर्जी को एमिट करेगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, और कम होगी, एंड जीरो से कम हमारी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव. दैट्स व्हाई इट बिकम्स नेगेटिव. क्लियर. एंड when it goes more and more near to the nucleus, its energy becomes less and less. जैसे जैसे वो न्यूक्लियस के पास जाता जाएगा उसकी एनर्जी क्या होती जाएगी, और कम आपकी होती जाएगी, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज वहां पे क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी. सो clear that why E is negative, because when an electron is far away from the nucleus, it doesn't experience any nuclear force of attraction, as a result of which its energy becomes zero. When it comes close to the nucleus, जैसे ये न्यूक्लियस के पास आते जाता है, वैसे वैसे आपका क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये अपनी एनर्जी को एमिट करते रहता है, जिससे इसकी एनर्जी क्या होती जाती है, कम होती जाती है. And in second postulate we have studied that we have certain fixed circular orbits or stationary states, and these stationary states are numbered as 1, 2, 3, 4, etc. and designated as K, L, M, N, O, P, etc. Clear? यानी इनको नंबर हम कैसा देंगे, N is the एनर्जी लेवल, N क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 1 को हम क्या कहेंगे, K, 2 को L, 3 को M, 4 को N, एंड so on. एंड जो K होगा, K इज द नियरेस्ट स्टेशनरी स्टेट, जो हमारा कहाँ पे प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस के पास. इट मीन्स आउट ऑफ दीज स्टेशनरी स्टेट जो मिनिमम एनर्जी होगी वो किसकी होगी, K की, बिकॉज K एक्सपीरियंस द मैक्सिमम न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. K सबसे ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेगा, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे कम, क्योंकि उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सबसे ज्यादा एनर्जी को क्या करेगा, एमिट करेगा. सो फर्स्ट पॉस्टुलेट क्लियर था. सेकेंड पॉस्टुलेट, एंड सेकेंड पॉस्टुलेट वी हैव टू लर्न सर्टेन फॉर्मूलाज, जिसमें से मैंने फर्स्ट फॉर्मूला आपको कहा, दैट इज एनर्जी. क्लियर. और एनर्जी के ये हमारे 4 फॉर्मुलेज हैं, और ये फॉर्मूला होगा फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज. Now next formula we have to learn about the radius, because according to second postulates of Bohr model, electrons revolve around the nucleus in certain fixed circular orbits which have definite amount of energy. It means उनका radius भी क्या रहेगा, same रहेगा. Clear. Now रेडियस को हम कौन से फॉर्मूले से लर्न करेंगे, Rn. Rn मीन्स रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट. Rn इक्वल्स टू A0 n स्क्वायर. क्लियर. व्हाट इज A0 हियर, A0 इज 52.9 picometer, which is known as Bohr radius. This is the radius of the first stationary state, because Bohr ने जो अपनी पूरी स्टडी की वो किस पे बेस्ड की, हाइड्रोजन पे, तो उसने सिर्फ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट्स की वैल्यूज को कैलकुलेट किया. सो A0 इज 52.9 पिकोमीटर, विच इज नोन एज बोर रेडियस, एंड दिस इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट, दैट इज K स्टेशनरी स्टेट, बिकॉज इन हाइड्रोजन द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन K स्टेशनरी स्टेट. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे,
Rn इक्वल्स टू a0 n स्क्वायर. इट मीन्स n की वैल्यू को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा किसका रेडियस निकल जाएगा, फर्दर जो ऑर्बिट्स होंगे उनका रेडियस निकल जाएगा. नाउ दिस इज फॉर हाइड्रोजन. नाउ फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वो फॉर्मूला हो जाएगा Rn is equals to a0 n square upon z. And here what is z? Z is again atomic number. Z हमारा again क्या हो जाएगा, atomic number. Now next जो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे that is of velocity. Now what is the formula of velocity? Third, velocity means the velocity with which the electron revolve in the particular orbit. First हमने क्या देखा, energy of that particular stationary state. Second, radius of that particular stationary state. And third, we are dealing with the velocity of the electron which is revolving in that particular stationary state. So यहाँ पे जो formula होगा that is Vn equals to V0 into Z upon N. Clear? Now here Z is the atomic number. This is for हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज एज वेल एज हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के केस में ये क्या हो जाएगा 1 एंड इन अदर स्पीसीज इट बिकम्स 2 and 3. सो Vn इक्वल्स टू V0 into Z upon N. एंड हेयर अगेन हेयर A0 इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट. हेयर V0 इज द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट. मीन्स जिस वेलोसिटी से आपका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में मूव कर रहा है दैट इज, एंड दैट कम्स 2.188 into 10 to the power 8 centimeter per second. Clear? So Bohr calculated three things for hydrogen. First is energy, second is radius, and third is velocity. Energy is equals to minus 2 pi square me की power 4 upon n square into h square, and for hydrogen like species multiplied by z square. Radius Rn equals to a0 n square, and for hydrogen like species a0 n square upon z. Velocity v0 divided by n, and for hydrogen like species v0 into z upon n. A0 he calculated, that is 52.9 picometer, and V0 also he calculated, that is 2.188 into 10 to the power 8 centimeter per second. So ये हमारे दो postulates हो गए. Now we'll move to our third postulate. जो हमारा third postulate था Bohr model of atom का. Now what is our third postulate? हमने first में क्या कहा, that electrons revolve around the nucleus in certain circular orbits. Second में हमने कहा in all circular orbits electrons are not there. Only in certain circular orbits electrons are there, and those orbits have definite energy, and those orbits are known as energy state or stationary state. Clear? It means हमें जो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे वो एक डेफिनेट एनर्जी ऑर्बिट्स में मिलेंगे, डेफिनेट ऑर्बिट्स में मिलेंगे जिनकी एनर्जी आपकी क्या होगी, फिक्स. इट मीन्स इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन सेकेंड ऑर्बिट, उसकी एनर्जी एक पर्टिकुलर वैल्यू की होनी चाहिए, तब वो हमारी क्या होगी, सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आएगा. सपोज वन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन के, क्लियर, एंड अनदर इलेक्ट्रॉन वांट्स टू गो इन एल. दूसरा इलेक्ट्रॉन एल में जाना चाहता है. इट मीन्स क्या है, जो एनर्जी है वो आपकी इन बिटवीन नहीं होनी चाहिए, वो पर्टिकुलर किस एनर्जी लेवल का होना चाहिए, एल एनर्जी लेवल का ही होना चाहिए, तभी आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ एग्जिस्ट कर पाएगा, आपका एल में. इट मीन्स द थर्ड पोस्टुलेट ऑफ बोर मॉडल इज दैट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन is quantized. Clear? Now what is the meaning of this quantized? Clear? Now आप लोगों ने सबने टैक्सी में ट्रेवल किया होगा. Now in taxi we have two things. हमारे पास दो अलग अलग मीटर्स होते हैं. एक तो होता है आपका स्पीडोमीटर जिसमें हमें क्या दिखाई देती है, स्पीड, और एक होता है आपका फेयर मीटर जिसमें हमें क्या मिलते हैं, रेट्स. ठीक है, लाइक 1 रुपी, 2 रुपी, 3 रुपी, जितनी भी जर्नी हमने की उसका जो फेयर होता है वो हमें कहाँ मिलता है, इन फेयर मीटर. इफ
इफ यू ऑब्जर्व इन स्पीडोमीटर, जो स्पीडोमीटर की निडल होती है वो कॉन्टिन्यूसली अप डाउन अप डाउन अप डाउन मूव करती है. इट डिपेंड अपॉन द एक्सेलरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर टैक्सी, एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पर्टिकुलर टैक्सी डिपेंड अपॉन द ट्रैफिक. क्लियर? सो जो स्पीड है, स्पीड आपका एकदम से हाई भी हो सकता है, एकदम से लो भी हो सकता है, इन बिटवीन कहीं पे भी हो सकता है. बट इफ वी टॉक अबाउट द फेयर मीटर, अगर हम फेयर मीटर की बात करें तो फेयर मीटर में क्या होगा, इफ द फेयर मीटर इज बेस्ड ऑन 1 किलोमीटर 1 रुपी, तो जैसे ही आपका 1 किलोमीटर होगा फेयर मीटर में आपको क्या दिखाई देगा, 1 रुपी. एंड व्हेन द टैक्सी कवर 2 किलोमीटर, द 1 रुपी सडनली गेट कन्वर्टेड इनटू द 2 रुपी. इट मीन्स 1 और 2 के बीच में आपको कोई भी वैल्यू नहीं दिखेगी. सपोज मोर एग्जाम्पल, अगर आपका 1 किलोमीटर में चार्ज सपोज 10 रुपी है. क्लियर? एज सुन एज यू कवर 1 किलोमीटर द फेयर मीटर शोज 10 रुपी. And when you cover 2 kilometer, the fare meter shows only and only 20 rupees. The fare meter doesn't show 11, 12, 13, 14, 15. वो कुछ भी शो नहीं करेगा. It means in fare meter the amount of rupees are fixed. The amount of rupees are a multiple of 10 rupees. यानी 10 rupees के मल्टीपल में हमें क्या दिखाई देंगी, रुपीज दिखाई देंगे, 10, 20, 30, 40, 50. बट इनके बीच की वैल्यू हमें नहीं दिखाई देगी. एंड वेन एनी वैल्यू इज फिक्स्ड इन अ पर्टिकुलर वैल्यू, कोई वैल्यू आपकी क्या हो जाती है, फिक्स्ड हो जाती है किसी बेसिक टर्म में, तो दैट इज नोन एज क्वेंटाइजेशन. उसे हम क्या कहते हैं, क्वेंटाइजेशन. सो जो हमने एनर्जी पढ़ी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका फॉर्मूला क्या पढ़ा, अगर हम En की बात करें, इट इज -2 पाई स्क्वायर me⁴ अपॉन n स्क्वायर इंटू h स्क्वायर. एक्सेप्ट n, ऑल अदर थिंग्स आर कॉन्स्टेंट. अगर हम n को छोड़ दें, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लैंक्स कांस्टेंट, पाई विच इज ऑल्सो कांस्टेंट, सारी चीजें कांस्टेंट है. इट मीन्स E की वैल्यू को सिर्फ कौन चेंज कर सकता है, n. इट मीन्स इफ इट इज 1 द वैल्यू इज लाइक दिस, इफ इट इज 2 द वैल्यू इज मल्टीपल ऑफ दिस, यानी वैल्यू इसका ही मल्टीपल आएगा, कुछ और नहीं आ सकता. इट मीन्स द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज quantized. I hope the quantization term is clear to you. Now this is our third postulate. If we talk about the fourth postulate, now in fourth postulate we'll talk about the angular momentum of electron. Angular momentum of electron. Now Bohr observed that just like energy, the angular momentum of electron is also quantized. जैसे एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्वांटाइज्ड है हमारे पूरे के पूरे एटम में, वैसे ही एंगुलर मोमेंटम जो होता है इलेक्ट्रॉन का, वो भी क्या होता है आपका, क्वांटाइज्ड. एंड द परमिसिबल वैल्यू ऑफ द एंगुलर मोमेंटम इज mvr is equals to nh upon 2 pi, where mvr is the angular momentum, where m is the mass of electron. m हमारा क्या है, mass of electron है. v हमारा क्या है, tangential velocity of electron. Tangential velocity of electron, and r is the radius of the orbit. रेडियस ऑफ द ऑर्बिट जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रोटेट. जनरली हम इसे m ओमेगा पढ़ते हैं एंगुलर मोमेंटम को. हेयर ओमेगा इज इक्वल्स टू v इंटू आर. सो mvr दैट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई. इट मीन्स एंगुलर मोमेंटम इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई विच इज अ कांस्टेंट. सो जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो या तो h अपॉन 2 पाई होगा, ठीक है, इफ n इक्वल्स टू 1, या फिर 2h अपॉन 2 पाई होगा. बट इन बिटवीन आपको कोई भी एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू नहीं मिलेगी. पहले ऑर्बिट की एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू h अपॉन 2 पाई होगी, तो दूसरे ऑर्बिट के एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 2h अपॉन 2 पाई ही होगी. इसके अलावा कोई भी वैल्यू नहीं होगी. इफ वी टॉक अबाउट थर्ड ऑर्बिट, तो उसके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 3h अपॉन 2 पाई. इट मीन्स द एंगुलर मोमेंटम, जो एंगुलर मोमेंटम है आपका ऑर्बिट का, वो भी हमारा क्या है, क्वांटाइज्ड, जस्ट लाइक दैट ऑफ द. नाउ फिफ्थ पोस्टुलेट, जो हमारा फिफ्थ पोस्टुलेट है बोर मॉडल ऑफ एटम का. फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था हमारा, दैट सेंटर न्यूक्लियस अराउंड इलेक्ट्रॉन इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स. सेकेंड, दोज ऑर्बिट्स
have a fixed amount of energy and are known as stationary states और energy level, जिसमें हमने energy का फॉर्मूला पढ़ा, रेडियस का फॉर्मूला पढ़ा और वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा. थर्ड जो हमारा पोस्टुलेट था वो क्या था, दैट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, इन विच वी लर्न दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्वांटाइजेशन टर्म. फोर्थ जो पोस्टुलेट था वो क्या था हमारा, दैट जस्ट लाइक एनर्जी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो क्वांटाइज्ड. Now we'll move to our fifth postulate. Now, according to the fifth postulate of Bohr model of atom, the lowest energy state of an electron is known as the ground state. यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट है उसे हम क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट. ग्राउंड स्टेट. सो for an electron, the lowest energy state is known as its ground state, in which the electron is present in an atom. जिस स्टेट में इलेक्ट्रॉन जनरली आपका प्रेजेंट रहता है एटम में, वो उसकी क्या होती है, लोवेस्ट एनर्जी स्टेट होती है, और उसे क्या कहते हैं हम, ग्राउंड स्टेट कहते हैं. बट बोर ने ये भी कहा दैट जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में रोटेट करता रहता है, और उसे हम स्टेशनरी स्टेट इसलिए कहते हैं बिकॉज the energy of that particular orbit or the energy of the electron which is present in that particular orbit remains same. क्योंकि energy ना orbit की change होती है और ना ही electron की change होती है. But whenever we supply energy or we supply heat to an atom, लेकिन जब हम बाहर से कोई एक्सटर्नल हीट या एक्सटर्नल एनर्जी किसको सप्लाई करते हैं, एटम को सप्लाई करते हैं, सो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी, as a result of which energy get increases. उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से वो उस ऑर्बिट में नहीं रह पाता है, और वो किस ऑर्बिट में जंप कर जाता है, टू सम हायर एनर्जी लेवल, एंड दैट केस द एटम इज नोन टू प्रेजेंट इन इट्स एक्साइटेड स्टेट. सो सेकेंड जो सिक्स्थ यहाँ पे टर्म आएगा दैट इज एक्साइटेड स्टेट. इन सिक्स पोस्टुलेट वी विल टॉक अबाउट एक्साइटेड स्टेट. सो व्हेनेवर एन एटम एब्जॉर्ब हीट, ठीक है, जब एटम क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, सो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है हमारी, इंक्रीज. ड्यू टू द इंक्रीज इन द एनर्जी वो उस ऑर्बिट में नहीं रह पाते हैं जिस ऑर्बिट में वो वहां पे होते हैं, सो वो क्या करते हैं, दे जम्प टू सम हायर एनर्जी लेवल. higher energy level, and this higher energy level is known as excited state. इस higher energy level को क्या कहते हैं, excited state. But the life of an electron in the higher energy level is very less. As soon as it moves to the higher, it jumps to the higher energy level, it release the energy and come back to its ground state. लेकिन हायर एनर्जी लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत कम होता है, तो जैसे ही वो ऊपर जाते हैं हायर एनर्जी लेवल पे, वैसे ही आपके वो इलेक्ट्रॉन जंप करके वापस कहाँ आ जाते हैं, हमारे ग्राउंड स्टेट में या लोअर एनर्जी स्टेट में. So one is the ground state, which is the lowest energy state of an electron, and second is the excited state, means some higher energy level which is occupied by an electron by the absorption of the heat. So these are the 6 postulates of the Bohr's model of atom. Now what are the merits of Bohr model of atom? जो merits थे Bohr models of atom के, क्लियर. फर्स्ट मेरिट जो था वो हमने पढ़ा था दैट इट ओवरकम द ड्रॉबैक ऑफ द रदरफोर्ड model of atom. And what is the drawback of the Rutherford model of atom? That Rutherford is not able to explain the stability of an atom. It means Bohr model of atom explain the stability of atom. बोर मॉडल ने किसको एक्सप्लेन कर लिया था, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को, क्योंकि बोर मॉडल ने क्या कहा, दैट इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन सर्टेन फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट्स which are known as energy level or stationary state. It means the energy of the electron and the energy of the orbit remain constant.
सो अगर एनर्जी ही कांस्टेंट रहेगी तो एनर्जी एमिट नहीं होगी, अगर एनर्जी एमिट नहीं होगी तो आपका जो ऑर्बिट है उसका रेडियस स्मॉल नहीं होगा, और अगर रेडियस स्मॉल नहीं होगा तो वो इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियस में फॉल नहीं होगा. इट मीन्स बोर मॉडल ऑफ एटम एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम. और सेकंड जो हमने पढ़ा था मैरिट, वो स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था, दैट इज इट ऑल्सो एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन. लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन. If you remember the line spectrum of hydrogen topic, we learned that when we kept hydrogen gas in a discharge tube and when we passed electric current, then we get a spectrum which is known as emission spectrum of hydrogen. It means we are supplying external energy. हम लोग क्या सप्लाई कर रहे हैं, एक एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं हाइड्रोजन गैस को जो हमने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर रखी है. क्लियर. नाउ अकॉर्डिंग टू 6 postulates ऑफ बोर मॉडल ऑफ एटम, जब हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर से कोई एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन उसको एब्जॉर्ब करता है. When electron absorb that energy, उसकी एनर्जी इंक्रीज होती है, एनर्जी इंक्रीज होकर वो कुछ हायर लेवल पे जंप करता है, और क्योंकि वहां पे उसका लाइफ स्पेन ज्यादा देर तक नहीं रहता तो वो वापस कहाँ आता है, हमारे ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करता है. सो सेम हैपन. लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन क्यों आया, हमने क्या प्रोवाइड किया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. ड्यू टू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द हाइड्रोजन गेट एक्साइटेड एंड गोज इनटू देयर एक्साइटेड स्टेट. But in the excited state, due to very small lifespan, they come back to the ground state. अब वो डायरेक्टली ग्राउंड स्टेट में आए या फिर इनडायरेक्टली ग्राउंड स्टेट में आए बाय स्मॉल स्मॉल जंपिंग, वो आपका डिपेंड करेगा कि आपको क्या मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट लाइंस मिलेंगे. बट the same question arise that why number of lines are present in the hydrogen spectrum though hydrogen contain only one electron. ठीक है, क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो जो हमें लाइन स्पेक्ट्रम मिली उसमें हमें इतनी सारी लाइंस क्यों मिली. इन अल्ट्रावायलेट रीजन, इन विजिबल रीजन, इन इंफ्रारेड रीजन हमें नंबर ऑफ लाइंस मिली. द रीजन इज दैट इन अ डिस्चार्ज ट्यूब वी आर टेकिंग 1 mole ऑफ हाइड्रोजन गैस. हमने क्या लिया था, 1 mole ऑफ हाइड्रोजन गैस लिया था. 1 mole ऑफ हाइड्रोजन गैस मीन्स 1 mole ऑफ हाइड्रोजन गैस मीन्स 6.022 into 10 to the power 23 H2 molecules. एंड जब हमने इसमें क्या प्रोवाइड किया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. सो ड्यू टू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज H2 गेट कन्वर्टेड इनटू H, यानी जो मॉलिक्यूल था वो किस में ब्रेक हो गया, एटम्स में. एंड this get converted into 2 into 6.022 into 10 to the power 23 hydrogen atoms. It means in the discharge tube we have this much amount of hydrogen atom. हमारे पास इतना अमाउंट ऑफ क्या है, हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है. नाउ ईच हाइड्रोजन एटम इज एब्जॉर्बिंग एनर्जी, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट हर हाइड्रोजन एटम इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या करे, एब्जॉर्ब करे. क्लियर. सो ईच हाइड्रोजन एटम इज एब्जॉर्बिंग एनर्जी ऑफ डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट, और वो जब डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट की एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा सो इट जम्प्स टू डिफरेंट डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट. वो डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट में जंप करेगा एंड व्हेन इट कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट वो उतनी ही डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा. एंड दैट्स व्हाई वी गेट लाइंस इन डिफरेंट रीजन. जितनी ज्यादा एनर्जी को वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, उतनी ही ज्यादा एनर्जी को वो क्या करेगा, एमिट करेगा. And because Bohr's theory depends on Planck's constant and Planck's quantum theory, and Planck's quantum theory is directly proportional to nu. जो E है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारा फ्रीक्वेंसी पे. यानी कि जितनी ज्यादा एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की, इट मीन्स उतनी ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब की. जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा उतनी ही फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एमिट करेगा. एंड उस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस हमें क्या मिलेंगी, स्पेक्ट्रम में. दैट्स व्हाई व्हेन इट एब्जॉर्ब द रेडिएशन ऑफ इंफ्रारेड रीजन वी गेट लाइन इन द इंफ्रारेड रीजन. व्हेन इट एब्जॉर्ब द रेडिएशन ऑफ विजिबल रीजन then we get the line in visible region. So in this way Bohr model of atom explain the stability of the atom as well as the line spectrum of the hydrogen atom. Next we'll talk about the limitation of Bohr's model of atom. हमने
रदरफोर्ड की लिमिटेशन पढ़ी, बोर मॉडल के पोस्टुलेट पढ़े, बोर मॉडल की मेरिट्स पढ़ी, अब हम बोर मॉडल की डीमेरिट्स पढ़ेंगे। नाउ द फर्स्ट डीमेरिट और फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल इज बोर मॉडल ऑफ एटम इज unable to explain the line spectra of multi-electron atoms. Means बोर स्टडी इज बेसिकली बेस्ड ऑन हाइड्रोजन एटम। बोर ने जो अपनी स्टडी की थी वो पूरी की पूरी किस पे थी? हाइड्रोजन पे। सो बोर कैन एबल टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ द हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के लाइन स्पेक्ट्रा को बोर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। क्लियर? एंड जब मोर डिफाइंड माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल माइक्रोस्कोप से जब लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन को ऑब्जर्व किया तो इट फाउंड दैट अ नंबर ऑफ स्मॉल लाइन्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन द लाइन्स। मीन्स जो लाइन स्पेक्ट्रा दिख रहा था उसमें उसके बीच में भी क्या प्रेजेंट थी? आपकी फाइन लाइन्स प्रेजेंट थी। देन व्हाई दीज फाइन लाइन्स आर प्रेजेंट बिटवीन द लाइन्स, ये भी बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। द सेकेंड लिमिटेशन ऑफ Bohr model is Zeeman effect. Now what is Zeeman effect? जब हम किसी भी एटम को या किसी भी मॉलिक्यूल को हम क्या कर रहे हैं, जब आपका मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू परफॉर्म करा रहे हैं, यानी जस्ट लाइक लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, जो हमने एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन किया, वी आर परफॉर्मिंग द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, हम सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं बट मैग्नेटिक फील्ड में, यानी वहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। सो वेन एवर वी इंट्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, द लाइन्स ऑफ द स्पेक्ट्रम गेट डिवाइडेड इनटू फाइन लाइन्स। ठीक है, जो लाइन्स है स्पेक्ट्रम की वो और फाइन लाइन्स में हमारी क्या हो जाती है? डिवाइड। एंड व्हाई दीज फाइन लाइन्स डिवाइड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये हमें बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एंड द डिवाइडिंग और द स्प्लिटिंग ऑफ द लाइन्स इन मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज ज़ीमैन इफेक्ट। सो स्पेक्ट्रम की लाइन्स का मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट होना क्या कहलाता है? ज़ीमैन इफेक्ट। एंड ज़ीमैन इफेक्ट इज नॉट एक्सप्लेन बाय बोर। नेक्स्ट इज थर्ड इज स्टार्क्स इफेक्ट। What is Stark's effect? Stark's effect is the splitting of the spectral line in electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड में लाइन के स्प्लिट होने को हम क्या कहते हैं? स्टार्क इफेक्ट। सो बोर मॉडल इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन बोथ ज़ीमैन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट, मीन्स द स्प्लिटिंग ऑफ द spectral lines in magnetic field and in electric field. Fourth limitation is Bohr model of atom is not able to explain the three-dimensional structure of atom. Because according to Bohr, electrons are present in a circular orbit. एंड सर्कल इज अ 2D स्ट्रक्चर। जो सर्कल है हमारा वो क्या है? हमारा एक 2D स्ट्रक्चर है। इट मीन्स द बोर मॉडल ऑफ एटम इज अ 2D मॉडल। सो बोर मॉडल ऑफ एटम इज अनेबल टू एक्सप्लेन द 3-dimensional स्ट्रक्चर ऑफ एटम। फिफ्थ, इट इज अनेबल टू एक्सप्लेन द शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स। नाउ वी नो दैट द कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल बॉन्ड्स। जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो डायरेक्शनल बॉन्ड्स होते हैं। एंड बिकॉज ऑफ द डायरेक्शनल बॉन्ड्स वी गेट शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। हमें क्या मिलता है? मॉलिक्यूल का शेप मिलता है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड हमें क्या बताते हैं? डायरेक्शन बताते हैं कि किस डायरेक्शन में आपका बॉन्ड प्रेजेंट है। सो इन दिस वे वी गेट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, बट बोर थ्योरी इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। And the sixth limitation of Bohr model of atom is Bohr model of atom is unable to explain the de Broglie well nature of matter and the Heisenberg uncertainty principle, which we will discuss later on. These two terms we will discuss later on. So these are the limitations of Bohr model of atom.
unable to explain the line spectrum of multi-electron atom, unable to explain Zeeman effect and Stark effect, unable to explain the 3D structure of atom, unable to explain shape of the molecule, de Broglie dual nature of matter, and Heisenberg uncertainty principle. Guys, that's all for today. I'll see you in my next video with new topics.